Hey, hi guys. Am I audible? Yes, Everyone? yes, sir. Yes, Akash. ठीक है. All right. So in the previous class, we had a discussion on use cases, right? Is my screen is visible? Yes. Yes. Yes, it is. क्या होता है use case? कोई बताएगा? What is use case? I know. What is use case? Yes, Lakhan. It was basically how a user interacts with the system to achieve a designed goal, a determined goal. To achieve a design goal. Design goal का मतलब क्या होता है? Uh, the goal we have prepared, like a fixed goal which we want to achieve it. Specific goal. Specific goal, yes. So I hope that everyone knows that के how to create use case diagram और किस तरीके से on the behalf of scenario or on the behalf of a specific goal we are going to describe the whole scenarios या फिर whole step by step things. ठीक है. So today we are going to discuss about the UAT, user acceptance testing. ठीक है. So हम लोगों ने जो previous वाला session था उस प्रीवियस वाले सेशन के एंड में आई टोल्ड यू कि दो चीज़ें होती हैं. ठीक है. एक होता है टेस्ट केसेस और एक होता है टेस्ट सिनेरियोज. और मैंने ये भी बोला था कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने आप करना. कितने लोगों ने करा? टेस्ट केसेस क्या होता है, टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं? Because we are on the testing phase right now in software development life cycle. So SDLC के अंदर जितने भी points थे, like the first is related to requirement gathering and requirement elicitation, second is related to planning, ठीक है, planning and analysis phase, third is related to design, fourth is related to development or implementation, fifth is related to testing module. So abhi tak we already done these 4 points and we are on the testing phase. So इस testing के अंदर you as a business analyst you have to know about the test cases कि what is test scenario, ठीक है, and how many types of testing are there or UAT, that is known as the user acceptance testing. कितने लोगों को पता है टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं? बताओ भाई. Test cases are basically written for the manual testers, ठीक है. so that we can give them those cases and they can find the maximum number of errors into the particular design or system that has been developed. And test scenarios? I don't know. Anyone else? What is test scenarios? देखो, ये जो टेस्टिंग फेज है ना, ये पूरा का पूरा टेस्टिंग फेज इज वेरी वेरी ट्रिकी. ठीक है. मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स अबाउट दैट. कहीं कहीं पे ये बोला जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट. सो बिजनेस एनालिस्ट इज the one who just take care about the test cases and test scenarios as well. लेकिन कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस एनालिस्ट जो है वो यूएटी परफॉर्म करता है. ठीक है. तो हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं बट मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता हूँ कि व्हाट इज टेस्ट केसेस, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियोज, व्हाट इज यूएटी.
ठीक है, जो कि यूएटी इज बेसिकली द मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स, जो कि आपको परफॉर्म करनी ही करनी है, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और कितने टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं वो भी वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। ठीक है, सो सबसे पहले टेस्ट सिनेरियोज आता है। टेस्ट सिनेरियो सबसे पहला चीज आता है, टेस्ट सिनेरियो। आफ्टर द टेस्ट सिनेरियो वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस। ठीक है, सो टेस्ट केसेस इज टोटली एंड टोटली डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट सिनेरियोज। इफ वी डोंट हैव टेस्ट सिनेरियोज देन वी कैन नॉट एबल टू राइट द टेस्ट केसेस। ठीक है, सो यहाँ पे जो बिजनेस एनालिस्ट है, जो बीए है, बीए इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट द टेस्ट सिनेरियोज और टू गिव द टेस्ट सिनेरियो टू द टेस्टर फॉर द टेस्ट केसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस एनालिस्ट डिड द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिजनेस एनालिस्ट डिड द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, business analysts know each and everything about the requirement from the client side related to the pain points, workflows और business problem and all वो उसको सब पता है। ठीक है, so on the behalf of that business analysts will able to write the test scenarios। टेस्ट सिनेरियो का मतलब क्या है कि what to be test, कि करना क्या है टेस्ट, उनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट सिनेरियोज। सो टेस्ट सिनेरियोज इज जस्ट लाइक ए वन लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन और वन लाइन ऑफ सेंटेंस। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ वन लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन और वन लाइन ऑफ सेंटेंस देन बीए पास्ड दिस वन टू द मैनुअल टेस्टर, और जो भी टेस्टर वहां पे प्रेजेंट होगा, ये क्यूए प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप टेस्टर मत यूज करो, आप क्यूए यूज करो, क्वालिटी एनालिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेस्ट सिनेरियो रहता है, अब वो टेस्ट सिनेरियो रहता कैसे। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ई कॉमर्स डोमेन की, जो कि अभी अभी तक हम लोग बात करते हुए आए हैं, जो भी हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे वो जनरली ई कॉमर्स के लिए ही लिए हैं। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा ई कॉमर्स का ही थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है। ठीक है, so let's suppose that कि you have a proper requirement of e-commerce from the client side and आप डेवलपमेंट फेज में हैं या फिर आप प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। नाउ यू आर ऑन द टेस्ट सिनेरियो फेज। ठीक है, सो ये जो टेस्ट सिनेरियोज हैं, ये पहली बात तो कब लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कंपनी टू कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट टेस्ट सिनेरियोज है वो ड्यूरिंग स्प्रिंट भी लिख देता है। जब हमारी स्प्रिंट चल रही होती है तो टेस्ट सिनेरियोज जो है तब भी लिखे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले भी लिखे जाते हैं। सो दैट इज टोटली डिपेंड। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू राइट द टेस्ट सिनेरियोज, या ओनली एंड ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट, या फिर आफ्टर द एनी स्टेज यू हैव टू राइट द टेस्ट सिनेरियोज। तो ऐसा कुछ वो रूल नहीं है एजाइल के अंदर। तो जब भी टाइम मिले आप लिख सकते हो। मेजरली केसेस में 75 to 80% केसेस में बिजनेस एनालिस्ट विल राइट द टेस्ट सिनेरियोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज वंस द स्प्रिंट इज स्टार्ट। जैसे स्प्रिंट स्टार्ट होती है उसके बाद जो है ये टेस्ट सिनेरियो और ये टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टेस्ट केसेस जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट केसेस नहीं है देन यू कैन नॉट एबल टू डू द टेस्टिंग प्रॉपरली, पहली बात। तो वो डॉक्यूमेंट अलग बने हुए रखे रहते हैं, FRD, BRD, SRD, SOW, RFP, RFI, वो सारे अलग हैं। और ये जो टेस्टिंग के फेज में जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है, ये अलग डॉक्यूमेंट है। और यूएटी डॉक्यूमेंट भी अलग होता है। यूएटी डॉक्यूमेंट इज नॉट मिक्स विद द टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, उस ई कॉमर्स में जो टेस्ट केसेस होंगे वो किस तरीके से होंगे, कोई बता पाएगा? क्या क्या चेक करोगे आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट? आप एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon। यू आर गोइंग टू डेवलप Amazon, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें टेस्ट करोगे आप लोग? सर्च बार में प्रोडक्ट सर्च करने पे वो सर्च हो रहा है नहीं हो रहा, एड टू कार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा, कैटेगरी काम कर रही है नहीं कर रही है। हाँ, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक सिनेरियोज है। तो from the perspective of user registration and login, so we have to write a test scenarios like कि verify that कि new user can sign up and existing user can log in successfully। so ये एक scenario हो गया,
है ना? दूसरा सिनेरियो मैं अगर लेके चलता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जैसे अभी आपने बोला कि रिलेटेड टू द प्रोडक्ट या फिर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सर्च फंक्शनैलिटी. So on the behalf of that, as a business analyst, I have to write कि verify that the user can search for product with the help of keyword or with the help of filters. ये सिनेरियो मैं किसको दे रहा हूँ? ये सिनेरियो टेस्टर्स को, किसको दे रहा हूँ? टेस्टिंग टेस्टर्स. टीम को, टेस्टर्स को quality. क्यों दे रहा हूँ टेस्टर्स को? so that they can verify if it's working or not. नहीं, So they can check बाद में if करेगा. the function is working. बाद में करेगा, पहले तो कुछ और भी बनाएगा ना, टेस्ट केसेस बनाएगा वो. टेस्ट सिनेरियो के बिहाफ पे टेस्ट केसेस बनेंगे और टेस्ट केसेस के बिहाफ पे टेस्टिंग परफॉर्म होगी. ओके, तो टेस्ट सिनेरियोस हम बना के देंगे उन्हें और टेस्ट केसेस वो लिखेंगे, मतलब टेस्टर्स. करेक्ट. लेकिन कभी कभी आपको भी टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना एज अ बिजनेस एनालिस्ट. ओके, राइट. ठीक है. सो ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे सिनेरियोज हैं. जस्ट लाइक वेरीफाई दैट कि जो हमारे न्यू यूजर्स हैं वो साइन अप प्रॉपरली कर पा रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन सक्सेसफुली कर पा रहे हो. दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है. सेकेंड सिनेरियो इज जस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिटेल पेज. अब प्रोडक्ट डिटेल पेज का मतलब क्या है कि वेरीफाई दैट के करेक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस एंड प्राइजेस आर डिस्प्लेड ऑन द यूआई. तो उसको चेक करो. ठीक है. पेमेंट से रिलेटेड अगर आया फ्रॉम द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन दैट के टेस्टर्स वेरीफाई दैट की पेमेंट आर प्रोसेस्ड करेक्टली फॉर डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सीओडी, जो भी एक्सवाइजेड है. तो ये सारे क्या है, ये सारे सिनेरियोज हैं. जितने सिनेरियो बन सकते हैं उतने बनाओ, जितने बन सकते हैं, 50, 60, 70, 100, 200, जितने बन सकते हैं. सो दीज ऑल आर नोन एज द टेस्ट सिनेरियोज. ठीक है. तो टेस्ट सिनेरियो पूरे के पूरे बना के आप टेस्टर को पास कर दोगे. देन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टेस्टर क्या करेगा, एक एक सिनेरियो उठाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेस्ट सिनेरियो में मान लेता हूं, टेस्ट सिनेरियो जो हुआ वो हुआ यूजर इज एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली. ठीक है. दिस इज द सिनेरियो. So on the behalf of that scenario, tester will write the test cases in the Excel sheet या फिर जीरा या फिर जो भी वो टूल यूज कर रहे होंगे उस पर वो प्रॉपर बनाएंगे. तो वहां पे पूरी की पूरी एक एक्सेल फाइल होगी पूरी की पूरी. ठीक है. उस एक्सेल फाइल के अंदर सबसे पहले टेस्ट केस आईडी, देन आफ्टर दैट टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन. ठीक है. टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन आएगा. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता हो गूगल पे बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं. अगर आप डालोगे टेस्ट केसेस टेम्पलेट्स तो देर आर टन्स ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल. यू कैन यूज एनी टेम्पलेट फॉर योर प्रैक्टिस. वहाँ पे आप कर सकते हो. बट जब इंटरव्यू पूछेगा तो आपको वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है वहाँ पे कि हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस, हाउ यू एज ए बिजनेस एनालिस्ट राइट द टेस्ट सिनेरियोज, what on the behalf of what parameters. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे टेस्ट केस आईडी हो गई, यहाँ पे टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेस्ट केसेस लिख रहे हैं. तो टेस्ट केसेस में द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट स्टेप. ठीक है. टेस्ट स्टेप का मतलब किस किस तरीके से हम लोग वहां तक पहुंचने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद टेस्ट डेटा. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेस्ट डेटा आता है. उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड उसके बाद कुछ रिमार्क. ये एक छोटी सी सिंपल सी हमारी एक्सेल फाइल की टेम्पलेट्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट केस आईडी इज TC001. दिस इज द टेस्ट केस आईडी. सो अंडर दिस सिनेरियो हम लोगों ने एक टेस्ट केस लिखा और उस टेस्ट केस का नाम अभी हमने दिया TC001. और इस TC001 का जो डिस्क्रिप्शन है, द डिस्क्रिप्शन इज कि वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स.
ठीक है। एक छोटा सा जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ। वैसे बहुत बड़े बड़े टेस्ट केस डॉक्यूमेंट होते हैं, तो मैं बहुत बहुत ही छोटे लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, माइंड में रहे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या आया, पूरा का पूरा टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन आ गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट। देन उसके बाद क्या आएगा, टेस्ट स्टेप्स आएंगे। इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करने के लिए व्हाट स्टेप वी हैव टू फॉलो टू रीच दैट पॉइंट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज go to login page of that website. Then second is enter valid username or your password. Then after that hit the login button. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि लॉगिन जो है वो करेक्ट क्रेडेंशियल के साथ परफॉर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो उसके लिए द टेस्ट केसेस वुड बी, the very first point is go to the login page. After that you have to enter your creds, correct creds, and after that hit the login button. तो जैसे ही आप लोग लॉगिन बटन को हिट करोगे, यहाँ पे टेस्ट डेटा लिखा है। टेस्ट डेटा मीन्स टू से दैट कि जो क्या आपने डाला है ना, आपका इनपुट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1234@gmail.com, दिस इज माई मेल आई डी एंड द पासवर्ड इज 123456, दिस इज द पासवर्ड। सो दिस इज नोन एज द टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा हम लोग रखते हैं, हमेशा रखते हैं, टेस्टर्स हमेशा रखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है। उसके बाद ये पूरे के पूरे करेक्ट क्रेडेंशियल्स डालने के बाद इफ ए यूजर, नॉट यूजर, टेस्टर, इफ ए टेस्टर हिट ऑन द लॉगिन बटन, तो उसके बाद रिजल्ट्स क्या आया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था हमारे पास कि यूजर शुड बी रिडायरेक्ट टू द होम पेज। तो क्या हुआ, यस और नो। अगर यस हुआ हो गया है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लिखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है दैट इज पास्ड, प्रॉपरली पास्ड। उसके बाद रिमार्क कुछ नहीं। अगर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो वेरीफाई नहीं होती तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट फेल। ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क में हम लोग लिखते हैं कि लॉगिन करने के बाद जो सिस्टम है वो हम लोगों को क्या एरर दिखा रहा है या क्या एरर दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि दिस इज सिनेरियो नंबर 1। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वी हैव वन सिनेरियो, तो एक सिनेरियो के अंदर क्या एक ही टेस्ट केस आएगा, है ना। ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस भी आएंगे। ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिनेरियोज वी कैन कंसीडर इन अंडर द टेस्ट सिनेरियो। सो ये टेस्ट सिनेरियो पॉजिटिव सेंस बना रहा है कि यूजर इज एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ करेक्ट क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे द फर्स्ट टेस्ट केस इज टोटली पॉजिटिव, है ना। हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट क्रेडेंशियल्स ले रहे हैं। व्हाट के अगर यूजर ने गलत क्रेडेंशियल डाले तो क्या होगा, वो सबको पता है कि सिस्टम जो है वो मैसेज को, सिस्टम जो है एरर मैसेज शो करेगा, अलर्ट शो करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू राइट टेस्ट केसेस जो कि टेस्टर्स लिखते हैं। दिस इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेस्टर्स, बट ओनली एंड ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द टेस्ट सिनेरियोज। तो मेक श्योर दैट एज ए बिजनेस एनालिस्ट जो आप टेस्ट सिनेरियोज प्रोवाइड कर रहे हो दैट प्रॉपरली अलाइंड टू द बिजनेस गोल्स। ठीक है। कि एक्चुअल में जो फंक्शनैलिटी बन रही है क्या वो बिजनेस गोल से प्रॉपरली अलाइंड है या फिर नहीं है। वो चीज़ आपको तब पता लगेगी जब आपके पास, आपके सामने क्लाइंट होगा और वो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट बताई होगी अपनी सारी की सारी। जैसे यहाँ हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। सो ये सारे के सारे सिनेरियोज कौन बनाएगा, ये सारे के सारे सिनेरियोज जो है वो बीए बनाएगा। जितने भी सिनेरियो हो सकते हैं उस पूरी की पूरी वेबसाइट में, जैसे लॉग आउट फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो ए सिनेरियो कि वेरीफाई दैट कि यूजर कैन सेफली लॉग आउट एंड सेशन एंड प्रॉपरली, है ना, और वो सारे सिस्टम से लॉग आउट हो जाए प्रॉपरली। सो दीज ऑल आर द टेस्ट सिनेरियोज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जो मैनुअल टेस्टर हैं या जो भी हैं वो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं। और जब ये टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टेस्ट केसेस एक्चुअल टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है। अब वैसे अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो देर आर नंबर ऑफ टेस्टिंग टाइप्स आर अवेलेबल। ठीक है। वैसे मैनुअली मेजरली दो ही होते हैं, एक तो होता है हमारा मैनुअल टेस्टिंग, एक होता है हमारे पास ऑटोमेशन टेस्टिंग।
ठीक है। फिर मैनुअल टेस्टिंग भी अलग अलग टाइप की डिवाइड है, लाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हो गई, है ना। फिर वो फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस वेरियस पार्ट, लाइक जस्ट लाइक फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फिर फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आपके पास यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, then UAT testing, then integration testing is further divided into different part, just like uh, increment testing, non increment testing, है ना। तो बहुत सारी टेस्टिंग है। आप लोगों को कौन सी परफॉर्म करनी है? आप लोगों को यूएटी परफॉर्म करना है। ये सारे के सारी जितनी भी टेस्टिंग है, जो मेजर मेजर टेस्टिंग है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता रहे। द फर्स्ट टेस्टिंग इज यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। सो यूनिट टेस्टिंग क्या, यूनिट माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? वन। यूनिट माने वन होता है। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब बहुत ही छोटा छोटा पार्ट, बिल्कुल स्मॉल, जो छोटे से छोटी फंक्शनैलिटी है, वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग नहीं करते, डेवलपर करते हैं। हम ना तो यूनिट टेस्टिंग ना हम करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग नहीं करते, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग नहीं करते, एंड टू एंड टेस्टिंग हम लोग नहीं करते। वो सारे के सारे डेवलपर्स करते हैं। वो सिस्टम टेस्टिंग में सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक सिस्टम टेस्टिंग और द इंटीग्रेशन टेस्टिंग्स। तो वो सारे के सारे डेवलपर और टेस्टर्स उन लोगों के लिए हैं। वो हम एज ए बिजनेस एनालिस्ट हम लोग नहीं करते। ठीक। आप लोगों को करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। द बेस्ट इज एपीआई टेस्टिंग। सो अगर आपको एपीआई टेस्टिंग करनी है, सो सबसे बेस्ट टूल है पोस्टमैन। ठीक है। थोड़ा सा रिज्यूमे में थोड़ा दिखाना है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, सो लर्न दिस पोस्टमैन फ्रॉम द यूट्यूब। 10-15 मिनट देख लो वहाँ पे, आधे घंटा 1 घंटा। वैसे तो बहुत बड़ी टेस्टिंग है, लेकिन एक छोटा सा ट्यूटोरियल वहाँ पे दे रखा है, वो आई विल शेयर। वहाँ पे देख लो, वो पता लग जाएगा कि पोस्टमैन कैसे काम करता है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर थोड़ा सा अभी स्टिक रहो, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, देन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। Akash, can you repeat the steps after the test case description? टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन यहाँ Uh, पर। the this is step test step and test data. The ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट केस आईडी, दिस इज टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, these test steps, test data, this is known as the expected result, and this is a remark. so what we do need to write on these test steps and test data. हाँ जी, यस। यहाँ पे एक चीज़ और भी आप मेंशन कर सकते हो, आफ्टर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट। सो इन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट कॉलम, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आया है, ठीक है, यस, नो, पास, फेल, वो आप वहाँ पे मेंशन कर दो। ये भी आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन किसी का? एज आई टोल्ड यू अबाउट द टूल्स, तो जीरा भी यूज़ करते हैं, एक्सेल भी यूज़ करते हैं, गूगल शीट भी यूज़ करते हैं, वर्ड डॉक भी यूज़ करते हैं, कॉन्फ्लेंस भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दुनिया भर के टूल हैं, वो यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो गूगल शीट वगैरह ही या फिर एक्सेल फाइल ही यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। समझ में आया? व्हाट इज टेस्ट केसेस, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियोज, यूज केस क्या होते हैं? या अभी भी कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो वी विल मूव टूवर्ड्स द यूएटी पार्ट। No question. गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन? नो। एवरीथिंग सॉर्टेड? ठीक है, चलो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूएटी। ठीक है।
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखो, एक तरफ है टेस्टिंग which consists of unit testing, integration testing, regression testing, और ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इंटीग्रेशन, दुनिया भर की सारी टेस्टिंग। ठीक है। और एक तरफ है यूएटी। अभी तक मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, कोई बता सकता है कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या लग रहा है? ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम्स। एक तरफ लिखा है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक तरफ लिखा है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग। So it could be like internal testing and external testing, like done internally before, during the development, and the user acceptance testing, as per the name suggested, must be done by the user in order to make sure, or in order to work as per the acceptance criteria. ठीक है। और कोई? Akash, unit testing is done before in the staging environment, and UAT is done in the unit testing is done in the production environment, and UAT is done in the staging environment before going live. And user acceptance testing is done from the perspective of the user. It is done by the client, so that everything is bugless and flawless before going into the live environment. So I think user acceptance testing is outside the organization, and unit testing and other testings are within the organization. Like any product-based or service-based company, they are more involved in the first type of testing, and in the user acceptance testing, user is also involved. ओके। मेरे पास दो सेंटेंस है। ठीक है। एक सेंटेंस ये बोल रहा है कि मैंने फंक्शनैलिटी, दूसरी तरफ ये है कि फंक्शनैलिटी ठीक बनी है। Can you repeat, Akash? What मैं did you say? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? Where is the other one? I can see this one. एक साइड लिखा है डिड वी बिल्ड द राइट थिंग, एक साइड लिखा है डिड वी बिल्ड द Right things. राइट। It is about the process and the output. Did we build the thing right? It is about the process. और कुछ अच्छा सा? I Did we think build the right thing would be if the output that we have created is what we expected. एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक चीज बनाई है, ठीक है, और एक साइड को ये बोल रहा है कि जो मैंने चीज बनाई है क्या वो सही बनी है उसके अकॉर्डिंग या फिर नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो यूएटी क्या है? यूएटी इज मोर एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द बिजनेस गोल्स और बिजनेस वैल्यूज।
कि whatever the developer did or the developer deployed, that is properly aligned to our business goals, business values or not. जो डेवलपर ने जो बनाया है वो तो ठीक है, दैट्स ओके, बट क्या वो प्रॉपरली अलाइन हो रहा है रिक्वायरमेंट से या नहीं हो रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द यूजर पर्सपेक्टिव. सो अगर मैं यूएटी की बात करता हूँ, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो ऑलरेडी यहाँ पे यूजर इन्वॉल्व है. तो सब लोग अभी ये सोच रहे हैं कि यूजर इन्वॉल्व, दैट मीन्स टू से दैट कि यूजर के पर्सपेक्टिव से, so that's also right. ठीक है, तो यूएटी मीन्स टू से दैट कि ये वाली जो टेस्टिंग है, दिस इज द फाइनल टेस्टिंग, दिस इज द फाइनल टेस्टिंग डन बाय द बिजनेस यूजर्स, बिजनेस एनालिस्ट, क्लाइंट्स. ये चेक करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर है क्या वो एक्चुअली वर्क कर रहा है जैसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, आइडिया के स्टेज पे सोचा था. उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यूएटी परफॉर्म करते हैं. गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो अपने आपको म्यूट कर लो, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो प्रॉब्लम पड़ेगा. क्या समझ में आया? UAT is the final phase of testing that is done in order to make sure the product that the development or the developers have developed is D means developer, QA means quality analyst, and in the right side, BA or internal stakeholder or external stakeholder who involved in the business perspective या business things. ठीक है, तो जो डेवलपर्स हैं और जो क्यूए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इतना देखते हैं, दे जस्ट चेक कि जो सिस्टम है दैट्स प्रॉपरली वर्क और नॉट. सिंपल सी बात है, उन्हें कुछ नहीं पता रिलेटेड टू द बिजनेस एंड, उन्हें नहीं पता रिलेटेड टू द बिजनेस विजन. जो भी ने दिखा दिया वो उनके लिए वो चीज़ है. बट यूजर्स और बिजनेस साइड चेक द सिस्टम वर्क प्रॉपरली द वे दे वांट इट टू. सिंपल सी बात ये. ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम देख रहे हैं कि हमारा जो बैक एंड है, हमारा जो फ्रंट एंड है, हमारा जो डेटाबेस है, हमारे जो इंटीग्रेशंस हैं, हमारे जो एपीआईज हैं, हमारे जो लॉजिक्स हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट्स ऑल राइट. बट जो लॉजिक बने हुए हैं, जो लॉजिक ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, उनसे थोड़ा सा हट के बिजनेस एनालिस्ट परफॉर्म द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ऑन द बिहाफ ऑफ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या ये लॉजिक उसके लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. उसके लिए हम लोग यूएटी परफॉर्म करते हैं. सिंपल सी बात. जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक एक शेफ हो गया, एक वेटर हो गया. शेफ ने खाना बनाया, वेटर ने टेस्ट करा, बट फाइनल टेस्टिंग कौन देगा? खाना खाने वाला देगा कि एक्चुअल में वो बनाए उस टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर नहीं है. दैट्स ऑल. सो दिस इज यूएटी. सो यूएटी इज जस्ट लाइक ए हमारे पास के किसके तरह बोल सकते हो यूएटी को? फाइनल टेस्ट according to the requirement. So it is the final testing done by the business user or business analyst or client to check if the software actually work as they expected in the kickoff meeting, in the requirement elicitation या फिर आइडिया के टाइम पे. ठीक है, तो अब इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हैं, so why we do the UAT? Already we have automation testers, already we have manual testers, सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं, तो यूएटी क्यों परफॉर्म कर रहे हो? मत करो. ऑलरेडी वी परफॉर्म डिफरेंट स्टेजेस, है ना. स्क्रम की स्टेजेस हो गई, क्लाइंट्स के अप्रूवल हो गए, तो वहाँ पे गलती का चांस है ही नहीं. फिर ये लास्ट में यूएटी क्यों परफॉर्म कर रहे हो? क्लाइंट ने अभी तक लाइव एनवायरनमेंट में चेक नहीं किया वो सब कुछ. ठीक है, और To check client's perspective. क्लाइंट पर्सपेक्टिव. सो
तो वाई वी डू यूएटी टू मेक श्योर दैट कि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है रियल बिजनेस वर्क को या रियल बिजनेस प्रॉब्लम के सल्यूशन को। ठीक है, टू कंफर्म दैट कि जो सॉफ्टवेयर है द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट एंड यूजर नीड्स प्रॉपरली टू गिव द फाइनल अप्रूवल बिफोर लॉन्च। एट द टाइम टेस्टिंग होती है ना, बिफोर डिस्पैच, if we are talking about the manufacturing unit. So simple in software development life cycle also, we have to give the final approval before launch. ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूएटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आती है कि स्टेजेस कौन कौन सी है when we do UAT in the software development life cycle। कब करोगे यूएटी? वी हैव Before go live. टू गो लाइव। नहीं, गो लाइव पे कैसे करोगे आप? Before go live. बिफोर गो लाइव, बिफोर गो लाइव या फिर प्रोडक्शन रिलीज से पहले हम लोग करेंगे। वंस द सिस्टम एंड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज डन बाय द क्यूए साइड, देन उसके बाद एज अ बिजनेस एनालिस्ट वी हैव टू सेट अप द होल एनवायरनमेंट, एंड उस एनवायरनमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, यूएटी को परफॉर्म करते हैं। अब वो एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होगा, क्या है क्या नहीं है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वी आर फॉलोइंग द एजाइल। वाटरफॉल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एजाइल की बात कर रहे हैं। तो एजाइल में कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो यूएटी है स्प्रिंट रिव्यू के बाद ही होता है या फिर गो लाइव से पहले ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन एजाइल वी हैव टू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, पहला तो ये है कि एट एवरी स्प्रिंट, सॉरी आफ्टर एवरी स्प्रिंट, एक स्प्रिंट खत्म हो गया उसके बाद हम लोग यूएटी परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द रिलीज। दोनों सिनेरियो में क्या समझ में आया? एक मैंने बोला आफ्टर एवरी स्प्रिंट एंड नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ रिलीज। तो आफ्टर एवरी स्प्रिंट जब हम करेंगे तो उतना पार्ट जितना डेवलप किया है उतना उसका यूएटी करेंगे, ठीक एंड है, एट द टाइम ऑफ रिलीज हम कंप्लीट प्रोडक्ट का यूएटी करेंगे अलोंग विद द क्लाइंट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द एंड ऑफ द रिलीज इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंट? When the final sprint is completed, ठीक है, When the final product is ready, when the final product is ready, okay, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि एट द एंड ऑफ द रिलीज या एट द एंड ऑफ ए रिलीज, तो ये एंड ऑफ ए रिलीज जो मैंने बोला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंट? After completion of one sprint, नहीं sprint goal achieve नहीं, करने के बाद एक स्प्रिंट में अगर सॉफ्टवेयर बन जाता तब आपकी बात ये सही थी, बट एक ही स्प्रिंट में कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। सो वी हैव टू टेल के आफ्टर मेनी स्प्रिंट्स रिलीज क्या है। एट द एंड ऑफ द रिलीज का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट्स, यही तो है ना। पहले एक स्प्रिंट खत्म हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ, ऐसे करते करते जो बहुत सारी स्प्रिंट जो है हमारी खत्म हो गई हैं, एंड जो एवरी आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो कहाँ जा रहा है? वो आउटपुट जो है वो 100% की साइड जा रहा है। तो 100% का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कंप्लीट। अब प्रोडक्ट कंप्लीट का मतलब सीधा उसके बाद रिलीज करो। ठीक है, सो आफ्टर एवरी स्प्रिंट मीन्स टू से दैट कि जो हमारे पास छोटा छोटा फीचर है जो हमने प्लानिंग फेज पे करा है, सो बिजनेस यूजर्स टेस्ट द न्यू फीचर वंस डेवलपर फिनिश्ड एंड क्यूए पास इट। और आफ्टर द रिलीज में हम लोग क्या करेंगे? व्हेन ऑल द फीचर्स आर कंबाइंड एंड टेस्ट टुगेदर। सो ये दो चीज होती है, समझ में आया? तो यूजुअली अगर मैं एक जनरलाइज बात करूं तो यूजुअली जो हमारा यूएटी है, यूएटी ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग वंस द क्यूए टीम कंफर्म कि हाँ एवरीथिंग
वर्क फाइन, तब हम लोग ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं. सो आई होप दैट यू ऑल नो स्प्रिंट सेरेमनीज क्या हैं, कितने टाइप की हैं, कौन कौन सी हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट इन ऑल स्क्रम सेरेमनीज क्या है. ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई यूएटी में, क्योंकि यूएटी आप ही को करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा यूएटी के अंदर. ध्यान रखना इस चीज़ का. एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ टिल नाउ? आकाश, आई हैव अ क्वेश्चन. यूएटी जब हम करते हैं तो उसमें मैनुअल टेस्टिंग ही करते हैं ना अपन, पूरी प्रॉपर हाँ, वो तो करते हैं. मैनुअली ही टेस्ट करते हैं उसको ना. हाँ, वो हम पूरा एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं, वो हम लोग यूजर्स को इनवाइट करते हैं, और यूजर को और वो invite- एडमिन टीम, मतलब आईटी टीम, एडमिन टीम करके देती है वो एनवायरनमेंट सेटअप. वो आप मैनुअली ही कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स उनके हाथ में दे दोगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट आउट्स निकाल के उनके हाथ में दे दोगे अकॉर्डिंग टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके बाद उनसे फंक्शनैलिटीज को चेक कराओगे. फंक्शनैलिटी को चेक कराने के बाद उनसे वो एक्सेल फाइल जो है वो फिल आउट करवाओगे. एक्सेल फाइल फिल आउट कराने के बाद आप उनको बोलोगे कि सबमिट योर एक्सेल फाइल. उनके बिहाफ पे आप पूरा का पूरा यूएटी परफॉर्म करते हो. क्या पास है, फेल है, कौन सी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, ये सब चीज़ें आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा उन लोगों के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल एलएमएस, एलएमएस यानी लीव मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. सो इन मैनेजमेंट सिस्टम, so in leave management system we have 4 business drivers, है ना. पहला बिजनेस ड्राइवर कौन है? एम्प्लॉय है. दूसरा कौन है? एचआर. तीसरा मैनेजर. और चौथा कौन है? Admin. एडमिन. ठीक है, एडमिन है. ठीक है, ये हमारे पास 4 बिजनेस ड्राइवर है. अब ये 4 बिजनेस ड्राइवर जो हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 4 बिजनेस ड्राइवर्स यू हैव टू सेट अप ए प्रॉपर एनवायरनमेंट. उससे पहले आप क्या बनाओगे? एक टेम्पलेट बनाओगे. वो टेम्पलेट कैसी होगी? वो टेम्पलेट कुछ पड़ी हुई है शायद, कुछ इस तरीके से वो टेम्पलेट होगी. नहीं है तो बहुत सारी टेम्पलेट जो है वो यहाँ भी लिखी हुई है. यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आप उठा सकते हो. इसमें सिर्फ पास और फेल ही लिखा है और डिस्क्रिप्शन लिखा है, दैट्स ऑल. और इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, कोई सी भी टेम्पलेट उठा सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे ये टेम्पलेट उठा के उस टेम्पलेट को क्रिएट करके ऑन द बिहाफ ऑफ दीज जो भी बिजनेस ड्राइवर्स हैं, इनको आप दे दोगे. जैसे एम्प्लॉय में आपने एक पर्सन रख लिया, एचआर को बी, इसको सी, फिर इसको डी, है ना. इनके पास अपने अलग अलग सिस्टम्स हैं. ठीक है, अलग अलग सिस्टम के बाद यहाँ से एम्प्लॉय ने क्या करा? लीव को अप्लाई करा. तो लीव को अप्लाई करने के बाद क्या प्रॉपरली लीव अप्लाई हो गया? दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड कि इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई ए लीव, देन लीव जो है वो सक्सेसफुल अप्लाइड हो जानी चाहिए. दिस इज योर टास्क. तो हो गया है तो वो अपनी एक्सेल फाइल जो है वो प्रॉपर फिल कर देगा कि यस. उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा. किसको? एचआर को. अगर इसने किसी को सीसी में रखा होगा तो वो सीसी के पास, जैसे मैनेजर को सीसी में रखा तो इसके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा. ठीक है. सो इनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वो ये परफॉर्म करेंगे. एचआर की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इन एलएमएस? Approving leaves, rejecting. Approve the leave. अप्रूव द लीव और रिजेक्ट द लीव. मैनेजर की क्या होती है? The same, almost. ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, अप्लाई और रिजेक्ट, ये होता है ना. तो क्या ये दोनों वो काम कर पा रहे हैं? ठीक है. एडमिन का क्या होता है रोल? एडमिन का रोल क्या होता है? Adjust the leave balance. Adding a new employees, reject or Adding a new employee,
रिजेक्टिंग या फिर उनको हटाना, or the फिर yeah. उसको ग्लोबल एक्सेस देना टू कंट्रोल द एक्सेस, ये सारी चीज़ें उसका होता है। तो क्या वो कर पा रहा है? अगर ये सब लोग अच्छी चीज़ें कर पा रहे हैं, एक्सेल में सारा का सारा पास्ट है, तो यूएटी यूएटी हो गया, दैट सिंपल। और आप यूएटी जो है, इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द यूएटी ऑन द कंपनी, दैट्स ऑल राइट। अगर क्लाइंट के एंड पे करो तो भी सही है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा, आपको कंपनी में से एक एम्प्लॉय उठा के लेके आना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको सिर्फ इतना इतना करना है। एचआर को उठा के लेके आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, मैनेजर को लेके आना पड़ेगा। इस तरीके से आप चीज़ें करो, ठीक है, प्रॉपरली सेटअप करके। वैसे तो नहीं करते हैं, वैसे तो बीए ही कर लेता है सारे काम डिफरेंट डिफरेंट ओपन करके सिस्टम पे, बट क्लाइंट के एंड पे वो चीज़ दिखानी पड़ती है, ठीक है। सो एज ए बिजनेस एनालिस्ट, as a business analyst, you have to plan the things, you have to prepare the things। अगर आपको टेस्टिंग की सपोर्ट लेनी है तो वो भी लोगे आप, साइन ऑफ भी लोगे डिफरेंट डिफरेंट यूजर से, इन सब से आपको साइन ऑफ लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यूएटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए पर्सन है, अगर आप इस ए पर्सन को देखो, ये जो ए पर्सन है, ये कौन है? एम्प्लॉय है। तो इसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, इसके भी कुछ स्टेप्स होंगे, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट, जैसे इन सेम टेस्ट केसेस इन द टेस्ट सिनेरियो सेम एज इट इज यूएटी सिनेरियो एंड यूएटी केसेस, कि इनको परफॉर्म जाना कहाँ पे, नेविगेशन कैसे होगा, भले ही उसको पता हो, वो एक एक नेविगेशन देखेगा। समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है, ये बताओ। जी आकाश भाई। ठीक है, इसी तरीके से परफॉर्म करनी होती है। टेम्पलेट्स अवेलेबल है गूगल पे, और अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी there is a fixed templates, then you definitely use that template। if there is not any template और प्रोवाइड वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो गूगल पे जाओ, वहाँ से टेम्पलेट उठाओ। मेन चीज़ ये है कि बेसिक पता होना चाहिए। चैट जीपीटी का यूज़ कर लो, परप्लेक्सिटी का यूज़ कर लो, वहाँ पे आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें चीज़ें बनानी पड़ती हैं। मेक श्योर दैट कि टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियोज इज टोटली डिफरेंट, और जो हमारा यूएटी केसेस हैं, यूएटी टेस्ट केसेस हैं और यूएटी के टेस्ट सिनेरियोज हैं, वो डिफरेंट है। वो बीए के एंड पे होते हैं सारे के सारे, उनमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेन यूएटी इज डन, देन यू हैव टू नोट दैट कि जितने भी टेस्ट केसेस हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट केसेस हैव बीन टेस्टेड प्रॉपरली फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ड्राइवर्स, और जो मेजर या फिर क्रिटिकल डिफेक्ट्स आए, वो सारा का सारा फिक्स ऑटोमेटिकली हो जाए, या फिर डेवलपर से कराओ, या फिर दोबारा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पे चेक करो, ठीक है, जीरा पे उसको रेस करो, वो सारे की सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और यूज़र जो है, ये सारे के सारे यूज़र्स हैं, है ना, यहाँ पे ये सारे यूज़र्स हैं, ये यूज़र हो गया, ये सारे यूज़र्स हैं, तो इनका साइन ऑफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेक श्योर दैट कि ये जो यूज़र्स हैं ये एग्री करें कि यस सिस्टम वर्क एज एक्सपेक्टेड, या एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इनके हैं, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस गोल से बनी हुई है, ठीक है, वो फाइनल साइन ऑफ होगा फिर। समझ में आया? और प्रॉपर सब लोगों के पास, ये जो लोग हैं सारे के सारे, इनके पास टेस्ट डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए, लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, these all kind of things, and test cases should be prepared by the BA। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने अभी बोला है स्टेप टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी मैंने दो चीज़ बोली है। द फर्स्ट इज यूएटी टेस्ट केसेस एंड सिनेरियो। सो ये जो टेस्ट केसेस हैं, ये भी आप एक्सेल फाइल पे ही बनाओगे सारे के सारे। यहाँ पे आप लिखोगे टेस्ट केस आईडी, फिर सिनेरियो, देन उसके बाद स्टेप्स, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देन उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट, देन उसके बाद साइन ऑफ, देन उसके बाद रिमार्क। तो
तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक्सेल फाइल जो है वो बनेगी। एंड ये जो एक्सेल फाइल है ये फील्ड होगी आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स के साथ। एम्प्लॉय है तो जो भी एम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ क्लिक करो, फिर वहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं तो दैट्स पास, नहीं हो रही हैं तो फेल। सिंपल, खत्म। और इन इन चीज़ों के लिए भी सेम ही टूल यूज़ होते हैं, लाइक जीरा हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गई, कॉन्फ्लेंस हो गया, वर्ड डॉक्स हो गए। तो ये सारे के सारे टूल्स यूज़ होते हैं। So as a business analyst, you have to create the UAT plan. Under the UAT plan, you have to mention what, who and when. तो BA प्रिपेयर करेगा टेस्ट केसेस बेस्ड अपॉन द एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जब आप टेस्ट केसेस को प्रिपेयर करोगे तो किसके बेसिस पे करोगे? किसके बेसिस पे करोगे? यूजर स्टोरी के बेसिस पे करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो आप ये टेस्ट केसेस जो परफॉर्म कर रहे हो सारी चीज़ें, ये ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर स्टोरी। देन आफ्टर दैट जो बीए है वो टेस्ट डेटा को और एनवायरनमेंट को अरेंज करवाएगा। देन बीए एक्सप्लेन द टेस्टिंग प्रोसेस टू द एवरी बिजनेस ड्राइवर या फिर बिजनेस यूजर जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हमारे 4 प्रेजेंट है, ABCD। तो यहाँ पे यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स कि व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे उनको आप बताओगे। ठीक है, उसके 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 बिहाफ पे आप उनको एक्सेल शीट प्रोवाइड कराओगे, सारे केसेस प्रोवाइड कराओगे कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको जाना है, ये चीज़ आपको लॉगिन करनी है, क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बिहाफ पे सीधा आप यहाँ पे लिखते रहो। अगर रीडायरेक्ट हो रहे हो एज एक्सपेक्टेड तो पास लिखो, नहीं हो रहे हो तो सीधा फेल लिख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा यूएटी होता है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एंड मेक श्योर दैट कि यूएटी क्या है? यूएटी इज द लास्ट टेस्टिंग फेज बिफोर गो लाइव। जब सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डेवलपर्स ने अपनी टेस्टिंग कर ली, क्यूए ने अपनी टेस्टिंग कर ली, फाइनल टेस्टिंग जब बिल्कुल एंड पे आता है तो होता है यूएटी। और ये डेवलपर से नहीं होता है, ना क्यूए से होता है, इट इज डन बाय द बिजनेस यूजर्स। सिंपल, टू चेक द भैया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और जब तक यूएटी में फाइनल रिव्यू या फाइनल साइन ऑफ नहीं होता, कभी भी कोई भी फंक्शनैलिटी गो लाइव नहीं होती है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी, तो उसके अंदर वो सारा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, कोई क्वेश्चन? No, Akash. Akash bhai, हाँ जी, I'm sure you use Perplexity and ChatGPT both. So which one you think is good in terms of answer, explaining and things? आई थिंक ChatGPT इज बेटर अकॉर्डिंग टू माय Yeah, same. Yeah, I just wanted to check. Thank you. ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, लेट्स रैप अप द सेशन। Thank you. Thanks, Akash.